मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आपने गुजराती सब्जेक्ट में धोरण 8 में पढ़ने वाले हैं, उसमें हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए है ऑलरेडी। फर्स्ट जो था चित्र पाठ रेलवे स्टेशन वो हमने कर लिया है, दूसरा था हिंद माता ने संबोधन वो भी हमने कर लिया है। अभी हम आज जाएंगे तीसरे चैप्टर पे जिसका नाम है द्विदल। जिसका नाम क्या है? द्विदल। द्विदल यानी का मतलब पता है आपको? पहले मैं आपको चैप्टर का टाइटल समझाऊंगी। द्वि यानी कि 2, द्विदल। इसका मतलब हम संधि अलग करेंगे इसकी तो क्या होगा? द्विदल। द्वि मतलब कि 2, ठीक है? બે દલ, દલ એટલે કે ભાગ, વિભાગ, જેના 2 વિભાગ પાડવામાં આવ્યા હોય પાઠના તેને શું કહેવાય? દ્વિદલ કહેવાય। આ દ્વિદલ શું છે? એક बोध कथा છે। बोध कथा जिसके हमें सीख मिलती है, कुछ अच्छा जानने को मिलता है, उसको हम बोलेंगे बोध कथा। ठीक है, ये चैप्टर का टाइटल हुआ। चैप्टर का टाइटल है द्विदल, એનો મતલબ થાય 2 ભાગ। હવે આ ચેપ્ટરના પણ એવા જ 2 ભાગ છે। પહેલો ભાગ છે મૂર્તિ અને બીજો ભાગ છે સ્વમૂલ્યાંકન। પ્રથમ ભાગ શું છે? મૂર્તિ। મૂર્તિ વિશે સમજાવ્યું છે, જ્યારે એનો બીજો ભાગ છે સ્વમૂલ્યાંકન। બરાબર? આ 2 ભાગ છે એટલે એનું ચેપ્ટરનું નામ આપેલું છે દ્વિદલ। હવે જોઈશું કે આ દ્વિદલ પાઠના લેખક કોણ છે। આ પાઠના લેખક છે ડોક્ટર I.K. વીજળીવાળા। શું છે લેખકનું નામ? I.K. વીજળીવાળા, જેમનો જન્મ 14 જુલાઈ 1960 માં થયો હતો। ક્યાં થયો હતો? આ લેખકનો જન્મ 14 જુલાઈ 1960 માં થયો હતો અને ક્યાં થયો હતો? ભાવનગર જિલ્લાના અમરગઢમાં થયો હતો। ક્યાં થયો હતો? ભાવનગર જિલ્લાના અમરગઢમાં થયો હતો। તેઓ ખૂબ જ વ્યવસાય ડોક્ટર હતા। આ જે હતા ડોક્ટર આપણે આગળ લગાવ્યું છે તો એ શું હતા? વ્યવસાય ડોક્ટર હતા અને તેમણે ઘણા બધા પુસ્તકો લખ્યા હતા। તેમાંના કેટલાક પુસ્તકોના નામ મેં બોર્ડ પર લખ્યા છે। તેમણે કેટલા પુસ્તકો લખ્યા હતા? તો સાયલેન્સ પ્લીઝ, મોતી ચારો, પ્રેમનો ઉપદ્રવ, ઉંદરભાઈને આંખો આવી, આ તેમના કેટલાક જાણીતા પુસ્તકો છે। તો હવે આપણે જોઈશું કે આ પાઠમાં શું કહેવા માંગે છે તેનો ટૂંકમાં પરિચય મેળવી લઈશું। તો અહીં 2 બોધ કથાઓ આપવામાં આવેલી છે, સાદી અને સરળ શૈલીમાં રજૂ કરવામાં આવી છે। પ્રથમ બોધ કથામાં શિલ્પીની આત્મનિષ્ઠા, પ્રભુનિષ્ઠા સુંદર રીતે વ્યક્ત થઈ છે, તો બીજી બોધ કથામાં એક યુવક પોતાના વ્યવસાય પ્રત્યે કેટલો નિષ્ઠાવાન છે, કેટલો ગંભીર છે તેની ચોટદાર શૈલીમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે। તો હવે આપણે પહેલા જોઈશું કે પ્રથમ ભાગ જે છે મૂર્તિ, તેના વિશે જાણીશું। તો આ મૂર્તિમાં શું હોય છે? એક વ્યક્તિ હોય છે, એક માણસ હોય છે। એક વખત પોતાના ગામમાં ચાલી રહેલા મંદિરનું નવનિર્માણ કાર્ય, મંદિર હોય છે પણ એનું ફરીથી રિનોવેશન, નવનિર્માણ એટલે કે રિનોવેશન કરવું, તો મંદિરનું રિનોવેશન કાર્ય ચાલુ હોય છે તો એ જોવા માટે જાય છે। પણ એક માણસ કેવો હોય છે? એટલો બધો કંઈ જાણકાર હોતો નથી ને એટલી બધી કંઈ પરિચય હોતો નથી। ત્યાં જઈને એને જોયું તો એક શિલ્પી ખૂબ જ એકાગ્રતાથી આરસ પહાડના પથ્થરોમાંથી એક મૂર્તિનું निर्माण कार्य, शिल्पी यानी जो पत्थर का कार्य करता है शिल्पी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिल्पी। वो शिल्पी क्या कर रहा होता है कि पत्थરની આરસ પહાડના પથ્થરોમાંથી એક મૂર્તિનું નિર્માણ કરી રહ્યો હોય છે। તે મૂર્તિને કોતરીને એક મૂર્તિ બનાવી રહ્યો હોય છે। और जो इंसान गया था वो देखने के लिए मानस, એને एक काम में खूब रस पड़ी जाए છે। कोई इंटरेस्ट से काम कर रहा हो तो हमें भी देखने में बहुत मजा आती है ना। हम देखते हैं कि कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो कभी हम भी इंटरेस्ट से वो देखने के लिए वहां बैठ जाते हैं। तो आ मानस पण ए शिल्पीनी बाजुमां आ मूर्तिનું कार्य જોવા માટે બેસી જાય છે। ત્યાં અચાનક આ માણસની નજર એક બીજી બાજુમાં પડેલી મૂર્તિ ઉપર પડે છે। क्या પડે છે? બાજુમાં એક બીજી सेम टू सेम એના જેવી મૂર્તિ હોય છે। सेम टू सेम दूसरी ऐसी मूर्ति होती है, उसके ऊपर जाती है तो वो मानस सोचने लगता है कि इस मूर्ति है तो सही ऑलरेडी, तो ये दूसरी क्यों बना रहा है? फिर वो शिल्पी को पूछता है कि भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी एक मूर्ति तो बनी हुई है, आप दूसरी मूर्ति क्यों बनाना चाहते हो? तो वो बोल रहा है कि मैंने मूर्ति तो बनाई थी लेकिन उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसलिए मैं वापस नई मूर्ति बना रहा हूँ। तो वो भाई जो मानस હોય છે એ પેલી મૂર્તિને જોવે છે
कि આમાં શું મિસ્ટેક એવી તો શું મિસ્ટેક છે કે નવી મૂર્તિ બનાવવા લાગ્યો ऐसी तो कौन सी मिस्टेक है हो गई उससे कि ये नई मूर्ति बनाने लगा और कितना टाइम जाता है मूर्ति बहुत सारा टाइम जाता है तो फिर वो देखता है और बोलता है कि मुझे तो इसमें कोई गलती नहीं दिखाई दी मैंने तो आમાં कोई भूल दिखाती नहीं फिर वो बोल रहा है पूछता है कि इसमें कौन सी मिस्टेक है मुझे तो कोई मिस्टेक नहीं दिखाई दी शिल्पी उसको बताता है कि उसका जो नाक है ना उसके ऊपर घसर को मतलब एक ऐसी लाइन हो गई है गलती से इसके लिए मैंने ये मूर्ति छोड़ दी और दूसरी मूर्ति बनाने लगा फिर वो जो व्यक्ति है वो पूछता है कि तुम ये मूर्ति की स्थापना ये मूर्ति कहाँ पे बिठाने वाले हो मंदिर है तो ये मंदिर में ये मूर्ति कहाँ बिठाने वाले हो वो शिल्पी क्या बोल रहा है ये मूर्ति में 10 फुट ऊंचा स्तंभ पर स्तंभ એટલે કે થાંભલો स्तंभ यानी क्या होगा થાંભલો 10 फुट ऊंचा थांभला पर બેસાડવાનો છું 10 फुट यानी 1 माल जितना हो जाता है तो वो बोल रहा है कि 10 फुट ऊंचे थांभले पे मैं वो मूर्ति बिठाने वाला हूं तो वो व्यक्ति सोच रहा है इतनी ऊंची कौन देखने वाला है इसमें नाक पे इतना थोड़ा सा घसर का मतलब लिखा हुआ है तो वो बोल रहा है कि क्यों इतनी मेहनत करते हो भाई आप इतना 10 फुट ऊपर इतना कुछ दिखने वाला नहीं है तो रहने दो आप मूर्ति मत बनवाओ फिर वो शिल्पी क्या बोल रहा है कि मुझे पता है आप सारे इंसान को पता नहीं कि ये लिखा हुआ है आपको पता नहीं था लेकिन मुझे और मेरे भगवान को पता है कि मुझसे ये गलती हुई है ठीक है किसको पता है वो शिल्पी क्या बोल रहा है મને અને મારા ભગવાનને ખબર છે કે મારાથી આ ભૂલ થઈ છે તેના કારણે હું આવી રીતે અન્યાય કરું નહીં પોતાની નિષ્ઠા પોતાની જે ગંભીરતા છે તે એ બતાવે છે કે મારા शिल्पी आत्मनिष्ठा कि खुद में उसको पता है कि मेरे से ये गलती हुई तो ये गलती खुद सुधारना चाहता है ठीक है आत्मनिष्ठा मतलब खुद की भूल सुधार रहा है और एवी रीते पोते बीजी मूर्ति નું નિર્માણ કરીને તે સ્તંભ પર સ્થાપે છે તો વ્યક્તિને નવાઈ લાગે છે તો આ રીતે એનો એક ભાગ પૂરો થાય છે કે પોતાની આત્મનિષ્ઠાના કારણે શિલ્પી નવી મૂર્તિ બનાવે છે હવે એક બીજો ભાગ છે સ્વમૂલ્યાંકન હવે સ્વમૂલ્યાંકનમાં શું થાય છે કે એક વ્યક્તિ છે તે પોતે જ પોતાની જાતનું મૂલ્યાંકન કરે છે કે મારું કાર્ય કેવું છે હું કેવી રીતે કાર્ય કરું છું પોતાના કાર્યની ગંભીરતા લે છે આપણે પોતાનું સ્વમૂલ્યાંકન કરવું હોય તો આપણે કોઈ સામેથી કહે કે ના તારું કાર્ય સારું છે તું સારા હેન્ડરાઇટિંગથી લખે છે તો આપણને ઓબ્વિયસલી ગમશે પણ આપણને કોઈ સામેવાળી વ્યક્તિ કહે કે ના કહે પણ આપણે પોતાની જાતે મૂલ્યાંકન કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકીએ તે માટે અહીંયા એક ચેપ્ટર આપેલું છે तो परदेश की एक बात है परदेश मतलब दूसरे देश की एक बात है वहाँ पे एक दुकान है स्टोर है वो स्टोर में जाता है एक इंसान एक व्यक्ति और पब्लिक फोन होता है ना वो उसको यूज करने की परमिशन मांगता है वो स्टोर जो दुकानदार होता है उससे ये दुकानदार ने कहे कि હું આ પબ્લિક ફોન ને यूज કરી શકું છું तो ये दुकानदार कहे છે हाँ जरूर તમે કરી શકો છો फिर वो फोन यूज करते हैं लेकिन उसके हाथ गंदे होते हैं क्या गंदा होता है उसके हाथ तो वो क्या करते हैं वो पब्लिक फोन को स्पीकर पे कर देता है किस पे कर देता है स्पीकर पे फोन कर देता है फिर वो जो होता है स्पीकर पे बात शुरू करता है वो किस एक लेडी को फोन करता है एक मैडम को फोन करता है और क्या बोल रहा है कि શું मैडम હું તમારે ત્યાં લોन કાપવાનું કામ કરી શકું છું उसको काम की जॉब की ऑफर करता है कि मुझे आपके वहाँ जॉब चाहिए काम चाहिए मुझे आपके यहाँ लॉन मतलब जो घास काटने का काम होता है घास काटने का काम वो मुझे दे सकते हो वो मैडम क्या बोल रही हैं कि सॉरी भैया अभी तो मेरे पास ऑलरेडी एक व्यक्ति एक पर्सन है ये सब काम कर सके वैसा तो फिर वो व्यक्ति बोल रहा है तो ठीक है तो फिर आप जो उसको पैसे दो तो उससे कम पैसे में मैं आपके वहाँ काम कर लूँगा वो क्या बोल रहा है व्यक्ति आप जितने पैसे वो व्यक्ति को देते हो उससे कम पैसे में भी मैं काम कर लूँगा तो वो जो मैडम होती है वो सामने रिप्लाई वापस करती है कि नहीं मुझे ऐसे कम पैसे में जरूर नहीं है वो जो व्यक्ति है मेरे वो बहुत ही अच्छा काम कर लेता है इसलिए मुझे किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है फिर ये जो व्यक्ति होता है फोन पे बोलता है मैडम मैं आपका घास तो काट ही लूंगा साथ में आजू बाजू जो रोड होते हैं उसकी भी अच्छे से साफ सफाई कर लूंगा एक्स्ट्रा काम भी मैं कर लूंगा वो भी उतने ही पैसे में मुझे पैसे भी ज्यादा नहीं चाहिए तो वो मैडम वापिस बोलती है कि नहीं भैया मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए एक्स्ट्रा आदमी की जरूरत नहीं है जो मेरे पास काम वाला है वो अच्छे से ईमानदारी से अपना काम कर लेता है
फिर वो इंसान फोन रख देता है, वो मैडम भी फोन रख देते हैं અને એને एकदम अंदर खुशीનો पार रहतो નથી, एकदम खुश हो जाता है और फोन रख के जैसे ही दुकान से निकलने वाला होता है। और ये सारी बातें कौन सुन रहा होता है? वो दुकानदार, क्योंकि उसके पास कोई दूसरे ग्राहक नहीं थे, तो ये सारी बातें दुकानदार आराम से सुन रहा होता है। फिर वो जैसे ही फोन रख के वो जाने की कोशिश करता है, तब वो दुकानदार उसको बुलाता है कि इधर आओ, इस मैडम ने तुझे काम रखने के लिए ना बोला, फिर भी तुम इतने खुश दिखाई दे रहे हो। तो वो बोल रहा है कि ऐसा तुझे काम चाहिए तो मेरी दुकान पे आके तू काम कर ले। तो वो इंसान मना कर देता है कि नहीं, मुझे काम की कोई आवश्यकता नहीं है। वो दुकानदार बोल रहा है अभी तो तू वो मैडम से काम के लिए बोल रहा था कि मुझे काम दो मैडम, मुझे काम दो, कम पैसे में भी मुझे काम दो, और अभी तू बोल रहा है मुझे काम की जरूरत नहीं है। फिर वो दुकानदार को सारी स्टोरी बताता है कि जिस मैडम को मैंने कॉल किया था वही मैडम के वहां मैं काम कर रहा हूँ। ये तो खुद का मैं स्वमूल्यांकन, खुद का मैं परीक्षण कर रहा था कि वो काम मैडम को मेरा काम कैसा लगता है, मेरा काम पसंद है कि नहीं है, इसलिए मैं मैडम को कॉल किया था और मैडम के साथ बात करके अपने काम का परीक्षण किया था, मूल्यांकन किया था, कि इवैल्यूएशन किया था कि मेरा काम कैसा लग रहा है मैडम को। ठीक है, तो ये दो पार्ट में हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। फर्स्ट पार्ट था मूर्ति, तो उसमें हमें प्रामाणिकता के बारे में मिलता है, आत्मनिष्ठा मतलब खुद में कैसे निष्ठा रखता है, भगवान को कभी धोखा देने की बात नहीं करता है। और दूसरे में स्वमूल्यांकन, स्वमूल्यांकन यानी अपना परीक्षण खुद करता है कि खुद अपने कार्य में कैसे निष्ठा रखता है, कितना प्रामाणिक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो मैं आपको भेजूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।